हेलो गाइस, गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। इस बार थोड़ा लेट हो गया, कुछ प्रोफेशनल एंड पर्सनल काम की वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूंगा कि फ्रिक्वेंसी जितना कम से कम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट टॉपिक वाज काइजन व्हिच आई deliver last to last week, right? So now what I have did, uh, I have carry forward the advanced methodology which comes after Kaizen. That is Kaikaku and Kakushin. So these picture are enough to tell about these methodology, what they work. So in picture you can see in Kaizen basically what we were doing, we were following the small changes, right? Making small impact on the business. But in Kaikaku start जब हमारा जो स्मॉल चेंजेस हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे या जो हमारा प्रोसेस है या प्रोडक्ट है उस पे आने बंद हो जाए, तब हमें जो हमारी मेथोडोलॉजी काम करती है वो काइकाकू काम करती है। और जब आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल हो जाए, राइट, देयर इज नो अदर changes or the new forecast in the business, right? So then comes into the role Kakushin, right? तो कुछ ये है। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं वो लोग काइजन के बारे में पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आई विल नॉट टेल इन डीप अबाउट द काइजन which I have already told in the last video. So now we will in today's session we will discuss about the differences between all three methodology, and then we will discuss about the real life example at the product level, and thus in the same way we have to implement in the process level as well, process and operation, right? And then after that we will discuss about how to implement the kaikaku, and then about the kakushin, and then later on we will discuss about ki if any one methodology is missing in any organization or any company or any organization wish to implement any methodology, और दे ट्राई टू जंप लाइक काइजन को स्किप कर दिया डायरेक्ट काइकाकू पे चले गए, या डायरेक्ट सबको ही स्किप कर दिया डायरेक्ट काकुसिन पे चले गए, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो. So this is all the thing which we are going to discuss in this session. So let's start further. So first discuss about the differences uh, between Kaizen versus Kaikaku and versus Kakusin. So what is Kaizen? That I have already described in the last session. That is change for better, right? Kai for change, Gen for good. So change for better. But in Kaikaku, what we do? Kaikaku do change. Kai means change, and again Kaku means revolutionary, revolutionary, right? So what does it mean? Radical changes और द ट्रांसफॉर्मेशन. जो मेरा एग्जिस्टिंग चल रहा था, जब मेरा स्टेबल हो गया प्रोडक्ट, तो उसके बाद से कुछ रेडिकल चेंजेस मीन्स कुछ जस्ट अपोजिट, और जो एकदम अट्रैक्ट करे, और जो प्रोसेस है या मेरा प्रोडक्ट है उसमें एक तरीके से कह सकते हैं जान फूंक दे, तो हमारा काइकाकू, राइट. देन वी टॉक अबाउट द काकुसिन. सो हियर काक न्यू प्लस शिन revolutionary. So here again it is innovation, reform और renewal. जो मेरी काई काकू में स्थिति थी उसको टोटली चेंजेस कर दे, टोटली चेंज कर दे. इवन इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाए मेरा. काईजन एंड काई काकू में क्या होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, राइट, बट जो उसको अचीव करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा. बट काकुसिन में तो एडवांस हो जाएगा, प्रो कह सकते हैं बेसिकली, हम प्रो लेवल. तो आगे डिस्कस करते हैं. काइजन बेसिकली इट इज अ कल्चरल activity which change slowly, right, and embedded into the working DNA of employees. Whereas cultural changes happen
explicitly and drastically changes in Kaikaku. And what about the Kakushin? In this, cultural changes happen consciously due to the focus thinking, right? तो मेरा जो इसमें काइजन में स्लोली चेंजेस होते हैं, जो चेंज चेंज होते हैं वो स्लोली होते हैं। इसमें काइकाकू में ड्रास्टिकली होते हैं और इसमें कॉन्शियसली होते हैं विद फोकस थिंकिंग, और इसमें चाहिए होती है हमें, ठीक है। विदाउट इट इट इज नॉट पॉसिबल। टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन कि कौन कौन इन्वॉल्व, किस किस की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है। काइजन की जब हम बात करते हैं तो फ्रॉम डाउन टू टॉप एवरीवन is required, every individual is required to do this activity kaizen, right? But in kaikaku we need a specialized team, can say CFT, or can say a department, a specialized department like engineering, or maybe continuous improvement team, or maybe lean consultant, in this way. And in kakusin also required a team or maybe intellectual effort, high curiosity and intensive research in the R&D एरिया। इसमें टीम के साथ साथ हाई क्यूरियोसिटी, इंटेंसिव रिसर्च भी चाहिए, ठीक है, R&D एंड इनोवेशन एरिया में। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस है पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ वी टॉक अबाउट था कि हाउ मेनी डेज विल टेक टू implement this, so if we talk about kaizen, so it can take days or week maximum, right? But when we talk about the kaikaku or kakusin, these two methodology are going to take month or maybe year as well. So it's depend upon how much big project or how much big change you are going to do in your process or maybe in your product, right? Then we talk about the data, how much data you require to analyze which kind of change we have to do here or we can implement here, right? So for kaizen we need real time data or good quality data for identification and resolution of the problem. But in kaikaku we required recent historical data and analytical tool as well, right, for better analysis. But in kakusin we required good historical data and careful agile planning to minimize the uncertainty and risk. Maybe when we talk about kaikaku तो maybe एक 1 month or 2 month का data will be enough हो जाएगा। But when we talk about the kakusin, so how much older data you have, then you can get better idea about the problem, what kind of problem you are having in your system. तो उससे आपके जो फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने को, जो रोक रहे हैं, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जितना आप ओल्डर डेटा और जितना डेटा सैंपल बेसिस, डेटा सैंपल साइज जो है ज्यादा होगा, उतना एनालिसिस करने में आपको इजी होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काइजन इज लेस कॉस्टली, ऑफ कोर्स लेस कॉस्टली, बट काइकाकू एंड काकुसिन these are most costly, more costly. Kaikaku is more costly than kaizen and kakusin is more costly than kaikaku. तो सबसे कम कॉस्ट लगती है हमारी काइजन में और सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है हमारी काकुसिन में। रीजन भी पता चल जाएगा आगे क्यों लगती है, क्योंकि काकुसिन में बहुत टॉप क्लास लेवल की रिसर्च चाहिए हमें उसको चेंज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। और काइजन में जस्ट सिंपल आइडियाज, जो भी आपको दिमाग में आया, आपको लगा कि इससे जरा सिंपल भी अगर बेनिफिट आपको दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, लाइक मैन पावर सेव हो रही है, टाइम सेव हो रहा है, इफिशिएंसी आप हो रही है, कुछ भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, स्पेस सेव हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है, एनीथिंग एनीवेयर, तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस, इसलिए वो लेस कॉस्टली भी है। काइजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, काइकाकू एंड काकुसिन both are non-continuous process. So these are the key differences in these three methodology: Kaizen, Kaikaku, and Kakusin. Now let's talk about the real life example. So here you may heard about the one new technique, or we can say technology has been introduced in automotive industry. तो क्या है कि अभी जो हम व्हीकल लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में, चाहे वो डीजल व्हीकल हो चाहे पेट्रोल व्हीकल हो, दोज आर बेस्ड ऑन द BS6
अर्लियर इट वाज BS4। तो जो BS4 से BS6 में जो भी चेंजेस हुए हैं वो दैट इज अ पार्ट ऑफ काइजन। वो काइजन बेसिकली उसमें क्या है, पर्टिकुलर मैटर्स और नाइट्रोक्साइड का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस किया है। अगर पेट्रोल की बात करें, पहले पीएम वैल्यू कोई लिमिट नहीं थी उसकी BS4 में, बट BS6 में नाउ इट हैज बीन फिक्स्ड टू अप टू 4.5 ओनली। और डीजल व्हीकल के केस में देयर वाज nitroxide was PM value was 25, but now it has been reduced up to 4.5। 82% रिडक्शन आर देयर, राइट। अब नाइट्रोक्स वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो 25% पेट्रोल में रिडक्शन है और 68% डीजल व्हीकल में रिडक्शन है। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, एवरीथिंग इज सेम, द ऑब्जेक्टिव इज सेम, राइट। कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, तो वो इसमें पॉल्यूशन रिड्यूस करने पे जो मेथड काम कर रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी का स्मॉल चेंजेस बेसिकली वी कैन से इन प्रोडक्ट लेवल दैट हैज बीन डन हियर, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द काइकाकू की हाउ काइकाकू इज डिफरेंट टू द काइजन। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बेसिकली ड्रास्टिकल चेंज हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल ड्रास्टिकल चेंज किसमें हुए, पॉल्यूशन भी लेस होगा और एवरेज भी अच्छा आएगा। यहाँ पे जब हम BS4 से BS6 की बात करें तो एवरेज में कोई खास इंपैक्ट नहीं था। यस ऑफ कोर्स पॉल्यूशन में इंपैक्ट था, पॉल्यूशन हमारा BS6 कम कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट लेके आई। बट काइकाकू में क्या है, पॉल्यूशन में तो बेनिफिट हुए ही हुए कि रिडक्शन है ही है, और एवरेज भी गाड़ी का हमारा बहुत बढ़ जा रहा है। बट ऑब्जेक्टिव अभी भी है कि पॉल्यूशन तो कर रही है गाड़ी, ठीक है। देन कि मार्केट ने सोचा कि अब आगे क्या कर सकते हैं, तो काकुसिन आ जाता है। काकुसिन में क्या हुआ, जो ऑब्जेक्टिव था वो ही चेंज हो गया। चेंज क्या मतलब, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस करने का वो इलिमिनेट ही कर दिया, इंजन ही हटा दिया, पॉल्यूशन का मतलब ही नहीं बनता जो मेरा स्मोक पॉल्यूशन है, राइट, वो कंप्लीटली इलिमिनेट हो गया। तो उसमें दुनिया भर की रिसर्च डेवलपमेंट, इवन दो अभी भी देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन द प्रोटोटाइप सैंपल, still research are going on in the EV sector, right? So that is part of काकुसिन। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले आप लोगों को पता होगा, मैं आई कैन से कि अराउंड 2000, राइट, और बिफोर 2000 इस तरीके के फोन आते थे, राइट। बट उसके बाद जो कुछ टाइम बाद फिर फोन को इस तरीके से चेंज कर दिया। आप देखोगे ये वाला आप कहीं भी लेके नहीं जा सकते थे, एक ही जगह पे रखे, बट ये वाला फोन इजी टू हैंडी था, राइट। तो इस तरीके के जो चेंजेस हुए वो आ गए हमारे काइजन में। फिर क्या हुआ, काइकाकू में कैसे करेंगे, जो हमारे टच पैड थे, टच पैड वाले फोन थे वो अलग थे, रेडियो अलग होता था, FM नहीं होता था उसमें, ठीक है। फिर क्या किया कि फोन में टच के भी उसके फीचर, टच वो उसके पैड के साथ साथ जो फीचर फोन थे उसके साथ साथ क्या वो आपका कलर दे दिया, कलर स्क्रीन दे दी, और साथ में क्या किया, रेडियो और FM इनबिल्ट कर दिया। तो रेडियो की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई, ठीक है। अब फोन हमारा कलर में हो गया। तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो काइकाकू में आएंगे। अब काकुसिन की अगर बात करें तो आजकल इतने एडवांस फोन आ गए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, फीचर फोन बटन ही रिमूव कर दिए, डेस्कटॉप की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास फोन है, कैमरे की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास फोन है, राइट। एंड देयर आर मेनी मोर एप्लीकेशन आर देयर कि जिसने वॉचेस इलिमिनेट कर दी जब से फोन आया, राइट। तो देयर आर मेनी मेनी मोर चेंजेस और मेनी मोर एप्लीकेशन, साइड एप्लीकेशन or gadgets which has been removed or eliminated through the today's phone. So this is also another example of the Kaizen, Kaikaku and Kakusin. अब एक और मजेदार फैक्ट बताता हूँ, चंद्रयान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राइट, कि चंद्रयान 2 फेल हो गया था, चंद्रयान 3 पास हो गया था, राइट। तो ऐसा क्या था कि चंद्रयान 3 में, तो उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई थी चंद्रयान 3 में, उस पर हम डिस्कस
करेंगे। तो आगे वही एग्जांपल है नेक्स्ट। तो बेसिकली हुआ क्या था, चंद्रयान 2 में हमारा कम्युनिकेशन, जो ऑर्बिटर है मेरा, ऑर्बिटर का लैंडर के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से। इस वजह से क्या हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई मून पे, जो मून सरफेस है उस पर क्रैश लैंडिंग हुई मेरे लैंडर की। वो मिशन हमारा फेल हो गया, बट ऑर्बिटर वाज वर्किंग फाइन, राइट। तो चंद्रयान 3 ने क्या किया, बेसिकली इन्होंने काइकाकू मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की। अब आप बोलेंगे काइकाकू कैसे कह रहे हैं, काकुसिन क्यों नहीं है? काइकाकू इसलिए है कि जो मेरा चंद्रयान 2 का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सेम था, बट इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एडवांस जाके उसकी एनालिसिस की, और जो भी इश्यूज थे, जो भी रूट कॉजेस थे उस मिशन के फेल होने में, उनको आइडेंटिफाई किया। और केवल इस बार इन्होंने क्या किया, केवल ये नहीं है कि कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाइक सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करें, इन्होंने क्या काम किया, कम्युनिकेशन के साथ साथ लैंड करते टाइम जब वो टच डाउन करेगा मून सरफेस को, वहां फेल ना हो जाए उस लेवल तक इन्होंने सोचा क्या क्या प्रोबेबल कॉजेस हो सकते हैं, दे आइडेंटिफाई देम, एंड देन दे टुक द एक्शन अगेंस्ट दोज factors, and the result is in front of you, and that has been blended. So let's discuss which kind of changes made in the Chandrayaan 3 instead of as compared to the Chandrayaan 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे पहले बताया, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर was working fine, right? So they use same orbiter in Chandrayaan 3, but parallelly what they did, they use shape, one more sensor we can say they use, which will analyze the spectrum of earth to generate the data for habitable planets. तो एक ये वाला मेथड टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की, सेंसर यूज किया। एक सेंसर और यूज किया इन्होंने, LRA, लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे, being sent with the lander, which is a passive experiment to understand the dynamic of moon system, जो कि हमारा पहले नहीं था। जो इसका काम था बेसिकली, जो मेरा डायनामिक चेंजेस है कि विंड स्पीड क्या होगी, डस्ट टेम्परेचर क्या होगा, आपका डस्ट क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, राइट। तो वो सारी चीज जो डायनामिक चेंजेस हैं उनको सबको इसने एनालाइज करने के लिए LRA इस बार हमने इम्प्लीमेंट किया। साथ में क्या किया कि एक लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा लगा हुआ था हमारा, जो चंद्रयान 2 में था वो केवल एक कैमरा लगाया था, बट इस बार हमने क्या किया, दो कैमरे यूज हुए थे इस बार, जिससे कि जो लोकेशन है जहां पे हमें लैंड करना है, तो उस एरिया को अच्छे से डिटेक्ट कर सके, कोई गहरा गड्ढा ना हो, लोकेशन फ्लैट हो, ठीक है, ये सारी चीजों को, और साथ में कोऑर्डिनेट अच्छे से हो सके ऑर्बिटर वर्सेस जो हमारा इसरो सेंटर है उसके बीच में, राइट। उसके बाद क्या किया, जो मेरी लैंडिंग वेलोसिटी थी वो चंद्रयान 2 में थी मेरी 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसको रिड्यूस करके 2 मीटर पर सेकेंड किया। साथ में जो इसकी लेग्स थी लैंडर की, उसकी स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा थोड़ा इंक्रीज की, जिससे कि मेरा लैंडिंग करते टाइम अगर फोर्स, अनइवन फोर्स अप्लाई हो तो वो बियर कर सके। लास्ट टाइम क्रैश हो गया था ये, राइट। और साथ में एक लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी इंटीग्रेट किया था, सेंसर था बेसिकली। इसका काम था इनेबलिंग द असेसमेंट ऑफ लूनार terrain by measuring component of 3 velocity vector redundancy in measurement at 2 existing instruments, जो कि चंद्रयान में था ही नहीं। साथ में ऑर्बिटर हमने नहीं लगाया था इसमें, तो उसकी जगह एडिशनल फ्यूल ऐड किया, जिससे कि it travel capable enhancing its travel capability and ability to handle the dispersion। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब कुछ न्यूज आई थी कि अगर 23 को जो वहां का एटमॉस्फेयर है अगर उसकी वजह से चेंजेस, फॉर एग्जांपल लैंड नहीं कर पाते हैं, जो वहां की वेदर कंडीशन है या और अदर डायनामिक चेंजेस है, तो फिर पोस्टपोन कर सकते हैं 27 के लिए। तो वो पहले केस में पॉसिबल नहीं था। इन केस अगर हम चले भी जाते और गलती से अगर वेदर कंडीशन सुटेबल नहीं होती
तो हम लैंड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फ्यूल नहीं था। बट इस बार हमने एडिशनल फ्यूल दिया, इस वजह से अगर हमारे पास ये भी स्कोप था, अगर 23 की जो कंडीशंस थी वो अगर टच डाउन के लिए सुटेबल ना भी होती तो हम 27 तक के लिए जा सकते थे। उसके बाद जो मेरा लैंडिंग एरिया था वो बहुत प्रिसाइज था, कुल 500 मीटर 500 टू 500 बाई 500 मीटर का था। बट इस बार 400 किलोमीटर टू 2.5 किलोमीटर तक का इंक्रीज कर दिया, जिससे कि अगर उस कहीं ना कहीं तो ऐसी सरफेस मिलेगी जहां हम लैंड कर सकते हैं। अब मान लो 500 बाई 500 मीटर में खाई होती, अगर वहां पे टच डाउन करने की कोशिश करते तो नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि चंद्रमा पे बहुत गहरी गहरी खाई है, कई कई जहाँ पे -240 डिग्री तक का सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, ऐसा बताते हैं। दूसरा क्या कि पहले केवल 2 साइड पे ही सोलर पैनल लगे थे, इस बार हर तरफ सोलर पैनल लगाए गए थे, जिससे कि अगर कोई साइड ऐसी जगह भी आ जाए जहाँ पे शेड हो, सनलाइट प्रॉपर ना हो, तो एटलीस्ट जो अदर साइड है उसके सोलर पैनल एक्टिवेट होके जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो प्रोवाइड करा सके। तो इतने सारे चेंजेस किए गए जो बेसिकली हम कह सकते हैं काइकाकू मेथोडोलॉजी को फॉलो करके किए गए हैं। यह काइकाकू मेथोडोलॉजी ही फॉलो हुई है। काइजन सफिशिएंट होता नहीं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस से कुछ काम होने जाने वाला नहीं था। काकुसिन का कोई पर्पज, काकुसिन अगर हम यूज करते तो मेरे प्रोजेक्ट के मिशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती। तो यहाँ पे मेरा काइकाकू बेनिफिशियल रहा और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द काइकाकू मेथड इम्प्लीमेंटेशन, कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो बेसिकली काइकाकू is a deliberate effort initiated by the top and senior management and required a strong direction from the administration as the implementation and result significantly impact the business। जैसा मैंने पहले बताया, इसके इम्प्लीमेंट करने में टॉप और सीनियर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बिजनेस को इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो वो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, जो इम्प्लीमेंटेशन है और रिजल्ट है। तो अब वो इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर एनालिसिस सही नहीं हुई और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो मे बी इफेक्ट भी आ सकते हैं। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट की जरूरत इसमें होती है। ये ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, राइट, बट इट डजंट मीन in every cases you require top and senior management involvement, right? So but does not necessarily mean that changes are never collaborative and participative. Sometimes the actual differences are driven by employee at lower level of the organization। तो सब इस काइकाकू के केस में कुछ केसेस में कुछ चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं काइकाकू के, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज भी डिसाइड कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ हर समय आपको सीनियर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो ही। जो इसके मेथड है काइकाकू के, so it consists basically several stages। So first is preparation, right? So in preparation basically it is essential to ensure management commitment, identify the necessary changes, set up strategy and targets, prepare a smaller project, allocate tasks and educate the staff on further steps। Basically जो हमारा प्रोजेक्ट है उस उसमें जो भी हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास होगा, उसके बाद एनालिसिस करके जो भी हमें नेसेसरी चेंजेस करने हैं उनको आइडेंटिफाई करो, राइट, और जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, टारगेट हैं, वो फिक्स करो। उसके बाद मैनेजमेंट के साथ रिव्यू करो। इफ इट गेट डन देन प्रिपेयर अ स्मॉलर प्रोजेक्ट, एलोकेट द टास्क टू टीम एंड एजुकेट स्टाफ टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लान और प्रिपरेशन। तो हाउ टू डू दिस? This phase allow us to analyze process, make necessary adjustment, test and evaluate the solution। तो अब वहां पे आपने सारा काम डॉक्यूमेंट में कर लिया। अब इसमें क्या, इस फेज में हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस है उसको एनालाइज करेंगे ऑन ग्राउंड, जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होंगे वो करेंगे, फिर उनको टेस्ट करेंगे जो हमने नई चेंजेस किए हैं, एडजस्टमेंट किए हैं, और उसका जो रिजल्ट है उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो कितना सही है। अगर मान लो वो सही, अगर जैसे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस चेंज से, इफ दैट इज ओके then we will work for the implementation। So finally it's time to implement new system and process, provide training for the employee and monitor the changes।
अगर मेरा सेकंड फेज में रीडिजाइन में अगर मुझे लग रहा है जो मैं नेसेसरी चेंजेस और एडजस्टमेंट मैंने किए हैं प्रोसेस में, इफ दैट आर सफिशिएंट, दैट आर गुड, द रिजल्ट आर गुड which we were expecting from that change, so we can go for the implementation. When we implement this new system or process, then we have to give the training to the employees whosoever are involved in that process or product, right? Then we talk about the Kaikaku project. So it can be four type of project, like locally innovative implementation. It can be locally innovative, like for example, introducing a solution well known to industry but new to company. जो हमारी इंडस्ट्री है, लाइक ऑटोमोटिव, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग एक्स कंपनी, राइट, तो दैट इज आल्सो ऑटोमोटिव। तो मैं कुछ ऐसा इनोवेशन कर रहा हूँ कि वो हो सकता है जो मेरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके लिए तो हो सकता है वो न्यू हो, ओल्ड हो, बट मेरी कंपनी के लिए वो न्यू होगा, न्यू है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट जाएंगे वो लोकली इनोवेटिव इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मेथोडोलॉजी है लोकली इनोवेटिव मेथोडोलॉजी। फॉर दिस, फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड, तो वेल नोन टू इंडस्ट्री बट न्यू टू कंपनी। पहली जो मेथोडोलॉजी है उसमें हम एक सॉल्यूशन था जो इंडस्ट्री में पता था या इंप्लीमेंट था, ऑलरेडी यूज हो रहा था, बट कंपनी के लिए न्यू था। इस बार मेथड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगेन सेम थिंग, इंडस्ट्री में ऑलरेडी दैट इज गोइंग फॉलो बट न्यू फॉर अवर कंपनी, राइट। तो यहाँ डिफरेंसेस है, बेसिकली सेम चीज है, एक में सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक में न्यू मेथड है इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और दोनों के केस में इंडस्ट्री में नोन है बट कंपनी को न्यू है। अब जो अगली मेथोडोलॉजी आ रही है वो बेसिकली इंडस्ट्री के लिए ही न्यू है। अगर ग्लोबली इनोवेटिव इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो दैट इज अबाउट द न्यू सॉल्यूशन विच इज न्यू फॉर इंडस्ट्री, मतलब ऑटोमोटिव में ही यूज नहीं हो रहा है, इसको ऐसे कह सकते हैं। और ग्लोबल इनोवेटिव मेथोडोलॉजी, तो वो जो मेथड था, मेरा प्रोडक्शन थ्योरी थी, वो भी इंडस्ट्री को ही न्यू है, मतलब है ही नहीं। तो ये चार बेसिकली, इन चार तरीके से हम के जो प्रोजेक्ट है वो कर सकते हैं। इसमें जो मेथोडोलॉजी बेसिकली यूज करते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट को करने के लिए वो हमारी होती है डीमैक और डीएमएडीबी। ये दो मेथोडोलॉजी, फोर मेथोडोलॉजी है बेसिकली। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फुल फॉर्म बता देता हूँ और थोड़ा सा हाईलाइट शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली दीज आर वेरी बिग टॉपिक, सो आई कैन शेयर यू इन अ डिफरेंट वीडियो। तो डीमैक बेसिकली है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस है और उसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली डी फॉर डिफाइन, एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, आई फॉर इम्प्रूवमेंट एंड सी फॉर कंट्रोल। और जो डीएमएडीबी है वो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है बट उसको रीडिजाइन करके इम्प्रूव करने के लिए, मतलब मेजर चेंजेस हो जाते हैं डीएमएडीबी जब हम करते हैं। डीमैक की बात करते हैं तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस बेसिकली उसी से काम चल जाता है। तो डीएमएडी की अगर हम बात करें तो इटसेल्फ इट इज एक्सप्लेनिंग कि गोइंग टू मेक अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस और बिजनेस। तो व्हाट इज इट? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। तो यहाँ पे हम न्यू डिजाइन करते हैं बेसिकली। तो अगर आप लोगों को लग रहा है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे करते हैं, ये कैसे यूज होती है मेथोडोलॉजी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पहले इस पे एक वीडियो इस पे लॉन्च रिलीज कर दूंगा डीमैक और डीएमएडीबी पे, ठीक है। आगे प्लान है लेकिन अभी नहीं है, बट अगर आप लोगों को चाहिए अभी तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, आप बता सकते हो। देन वी टॉक अबाउट द काकुसिन। मोस्टली चीजें सेम है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो काकुसिन के बारे में थोड़ा ही करूंगा। बेसिकली काकुसिन हेल्प टू रिमूव द स्टेटस क्यू एंड रिफ्रेश द सिस्टम विद दोज थिंग्स दैट आर रिलेवेंट एंड एड मोर वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपका काइकाकू और काइजन इंप्लीमेंट हो जाते हैं और फिर कुछ बिजनेस में आपके स्थिरता आ जाती है, राइट, स्टेबिलिटी आ जाती है, दैट इज नॉट गोइंग टू ग्रो मोर इन अप डायरेक्शन, इट इज गेटिंग स्टेबल, राइट, फ्लैट लाइन बेसिकली हम कह सकते हैं, तब हमारा काइकाकुसिन इंट्रोड्यूस होता है। अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं नोकिया का। बेसिकली नोकिया, एक टाइम ऐसा था जब नोकिया 1100 चलता था, तो मतलब हर कोई जानता था। उसके बाद नोकिया ने चेंजेस अडॉप्ट नहीं किए, जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चला, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है।
अभी भी बैक करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी जो चाहिए उसको वो नहीं मिल पा रहा है। तो वजह यही है कि आप अगर मेथोडोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी नई-नई है, जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर आपका एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप के प्रोडक्ट में ये हो, अगर आप वो डिलीवर नहीं करोगे, देन यू आर गोइंग टू ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट। सो काकुशिन वो जो स्थिरता है उसको खत्म करने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पे, प्रो लेवल पे ले जाने के लिए काकुशिन का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। तो इसके लिए जो बेसिकली मेथोडोलॉजी यूज होती है मेन, और भी है, बट मेन जो है वो आईडीओबी, ये कोर मेथोडोलॉजी है जो हम इसको यूज करते हैं। इसमें आइडेंटिफाई, डिजाइन, ऑप्टिमाइज एंड देन वेरीफाई। तो और ये भी हमारी टॉप डाउन अप्रोच है। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैनेजमेंट डिसीजन, बिकॉज इन दिस methodology use big investment, so that is why management decision and management involvement is necessary. Now we talk about, मैंने पहले बताया था कि what would a company loss if one of those as a concept was not utilized, कि अगर इन तीनों में से एक भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ तो क्या होगा। काइजन को तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, अगर काइजन यूज नहीं होता है तो ऐसे समझ लो, आपने मकान बना रहे हो, आप यू आर बिल्डिंग अ होम, तो यू डिडंट व्हाट आई कैन से डिडंट यूज द गुड मटेरियल। आपने नींव, उसकी जो बेस है वो आपने कमजोर कर दिया, आपने बेस पे काम नहीं किया, आपने बेस में अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, और आपने ऊपर जाके पिलर पे काम कर दिया, तो वो पिलर किसी पर्पस के, किसी काम के नहीं है, आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका बेस ही ठीक नहीं है। तो बेसिकली ये करता क्या है, काइजन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो रही होती है जो हमारे प्रोसेस में, जिसको हम नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, या जो हम नॉन वैल्यू एडेड स्मॉल बड़े चेंजेस से एक साथ नहीं हटा सकते, तो वो हमारी काइजन से ही हटती है। और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। आपके बिजनेस को अगर ग्रो करना है, देन यू हैव टू रिमूव द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। उस पे भी हम जब लीन मैन्युफैक्चरिंग का सेशन करेंगे, तब मैं आई विल डिलीवर द डिटेल ऑन दैट, राइट। तो काइकाकू क्या है, इफ यू नॉट utilize that, so potentially it could happen that small changes might keep on the happening eternally for ages but not much impact। होगा क्या कि अगर आपने काइकाकू नहीं किया, राइट, काइजन से बेसिकली एक सर्टेन टाइम तक आपको इम्पैक्ट दिखेंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप कितने भी काइजन करोगे वो मेजर इम्पैक्ट नहीं बना रहे होंगे बिजनेस पे। क्यों? क्योंकि जो मेजर फैक्टर थे दैट ऑलरेडी हैज बीन रिड्यूस्ड थ्रू काइजन, बट नाउ यू आर नॉट डूइंग यूजफुल काइजन बेसिकली, जो बड़ा इम्पैक्ट बना सके प्रोडक्ट लेवल पे, जो हमारे बिजनेस पे। तो अगर हम काइकाकू नहीं करेंगे तो जो हमारा चेंजेस है या जो इम्पैक्ट है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, कोई खास इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। जैसे ही हम काइकाकू करेंगे, तो जो हमारा हम काइकाकू बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि बेस मजबूत कर दिया, लेंटर अच्छा डाल दिया, ठीक है, बट जो हमारी बॉल है या पिलर है वो हमने अच्छे नहीं डाले, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका घर गिर जाएगा। तो वही काम अपना काइकाकू करता है, और काकोसिन में भी यही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव इन बिजनेस, ठीक है, जैसे मैंने अभी नोकिया का एग्जांपल दिया। अब बिजनेस अगर कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ एंड रेवेन्यू विल बी स्टैग्नेटेड एंड मोरल ऑफ टॉप मैनेजमेंट विल गो डाउन। नोकिया का एग्जांपल मैंने दिया, और घर वाले से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आपने बेस अच्छा बना दिया, आपने पिलर अच्छे बना दिए, साइड वॉल अच्छी बना दी, बट आपने जो लेंटर है, जो रूफ है, वो आपने अच्छी नहीं बनाई, जो उसकी जो कॉस्ट है, जो मटेरियल आपने यूज किया है, दैट इज नॉट गुड और अप टू मार्क। सो द रिजल्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट, जो लाइफ है आपके घर की वो कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली कहने का कंसर्न मतलब ये है, अल्टीमेट थिंग, कि तीनों ही मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंसली ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, राइट, और भैया घंटी का बटन भी दबा दो, नई ऊर्जा मिलती रहेगी। और एक कोट मैंने लिखा है,
लीव द कंफर्ट जोन एंड गो फॉरवर्ड लाइक अ फ्लोइंग वाटर। ठहरा हुआ तो पानी भी गंदा हो जाता है, देखा है ना, तालाब में, गड्ढों में हमेशा गंदा होता है पानी, पॉल्यूटेड। बट व्हेन यू विल सी द रिवर flowing water, you will never get dirty water in that. So guys, thank you so much, thank you so much